हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्मयोगी आईएएस। तो हम लोगों ने जस्टिस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। पॉलिटिकल साइंस की ये जो सीरीज़ है, इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। वी होप दैट यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई शैल पर्सनली आंसर देम। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मच डिले। आज की कथा को शुरू करते हैं। सो now this topic, political ideology, this is one of the very important topics. Every year there are questions from political ideology. This year there was question related to Marxism. There was also question related to neoliberalism. But neoliberalism का जो question है, the context, neoliberalism का जो question है उसका context जो है, that is applied, because he asked that how culture, society, culture, society, etc., their effect on neoliberalism. This kind of question was there. So yes, you have to have command over all the sections of the subject. Then you have to interconnect. Basically you have to interconnect the different parts of the subject. जो पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को साइलोज में नहीं पढ़ना है. देयर शुड बी हार्मनी एंड देयर शुड बी इंटरकनेक्टनेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आइडियोलॉजी. So what is ideology? Ideology, it's a simple form of philosophy, and ideology is basically set of ideas, belief presented before general mass of people. It is simple form of philosophy, set of ideas, beliefs presented for general mass of people. Complicated नहीं होती है आइडियोलॉजी. जैसे प्लेटो की बुक थी, ठीक है, रिपब्लिक. सो दैट इज फिलोसॉफी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, है ना. आइडियोलॉजी क्या होती है? जनरल पीपल के लिए होती है. एकदम सीधी सीधी बात बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो, देसी भाषा में जो बोली जाती है, ठीक है. सो दैट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. सो if we see in the context of modern like discipline of political science, so it is regarded कि political ideology जो है वो किस हिसाब से प्रोग्रेस किया है उन्होंने. सो सबसे पहले जो आइडियोलॉजी थी, आइडियलिज्म इटसेल्फ वाज एन आइडियोलॉजी इन एंशिएंट ग्रीस. आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है? आइडियलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे आइडिया को रियल माना जाता है. ओके. Then theory of divine right of kings. This was an ideology कि king should not be questioned. In idealism there was focus on dialectics. And in theory of divine right of kings, then liberalism, natural rights of man and individual was focused. Then liberalism became exploitative and came socialism. Socialism, actually after socialism there was two kind of responses. One was fascism in response of socialism, and then the another was welfare state. Welfare state was the like New Deals Act and all. They were came in the aftermath of world wars. And then there was neoliberalism in 60s, and in response to neoliberalism there was social liberalism. Who were the scholars of social liberalism? लास्ट क्लास में बात की थी. अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, these all were the scholars. Okay, so yeah, let's start. Idealism जो है, this is oldest and exponents were Socrates and Plato. हार्डली मेरे को तो याद नहीं आता आइडियलिज्म में से कोई क्वेश्चन पूछा होगा क्या. फासिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फासिज्म, लिबरलिज्म एंड और 21 के अंदर भी इन्होंने. तो यही है, मतलब इसमें से क्वेश्चन तो नहीं है, बट स्टिल एक बेसिक आइडिया होना चाहिए
कब किस में से कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, वी रियली डोंट नो. सो exponent Socrates, Plato, idea is real and matter is illusion, and only by reason idealism is rationalism. You know, idealism is basically rationalism, that only idea or reason, by the reason you can reach the supreme truth. Priority to society, whole is prior to the part. You know, जान चली गई थी, सोक्रेटिस ने तो जहर पी के अपनी जान दे दी थी, हेमलॉक. ओके, सो सोसाइटी को प्रायोरिटी थी आइडियलिज्म के अंदर, आइडिया को रियल माना था, मैटर को इल्यूजन माना था. स्टेट इज नेचुरल, स्टेट को नेचुरल बोला गया था. स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, इंडिविजुअल रिट लार्ज, दिस इज स्टेट. एंड लेटर देयर वर टू ब्रांचेस ऑफ आइडियलिज्म. One branch was branch of Hegel that is connected to fascism, because Hegel focuses on state absolutism, and the fascists, they take their idea from state absolutism. And the another branch of idealism that is seen in Immanuel Kant in modern times, that man is moral and rational. You know, he is again putting the focus on reason or rational, which was seen in Plato. Okay, that reason idealism is rationalism, because reason is the only way to reach the truth. So Hegel focuses on state absolutism. Kant, he, like his theory, his ideas, they are basis for welfare state and progressive taxation. And it is said that man, like he said, that man is moral and rational, and man has responsibility towards the society. See, again the concept is coming that whole is prior to the self, whole is prior to part, whole is prior to part, because he says that there is moral responsibility of man towards society, and this is the idea, defending idea for progressive taxation. Hegel's fascism, that thought it is found in Mussolini, nothing outside the state, nothing against the, nothing against state and nothing above. Okay, nothing outside, nothing against and nothing above. Outside, against and above. Nothing outside the state, nothing above the, nothing against the state and nothing above. Okay, so आइडियलिज्म और सोशलिज्म के अंदर एक चीज़ कॉमन आप देख सकते हो, कुछ कुछ ओवरलैप हमेशा रहता है किसी किसी थ्योरीज के अंदर. अब ये नहीं है कि भाई सोशलिज्म और कम्प्लीटली आइडियलिज्म है ना. सोशलिज्म पे तो स्टेट ओनरशिप के लिए बोला जाता है, बट फिर भी कुछ कुछ ओवरलैप हमेशा रहता है कुछ कुछ थ्योरीज के बीच में. तो सोशलिज्म क्या बोलता है, सोसाइटी के लिए ड्यूटी है एक इंडिविजुअल की, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट एक्सेसिव इंडिविजुअल. सो ये सोशलिज्म ये क्या है, एक्चुअली बेसिकली ये अगेंस्ट एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट ही तो है. तो ये आइडियलिज्म और सोशलिज्म के अंदर कॉमन थॉट है. ठीक है, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स, मेडिवल टाइम्स के अंदर, डार्क एजेस के अंदर, यूरोपियन हिस्ट्री. ये एक्चुअली हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं सर. ये सब हम यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. एंड मैक्सिमम थ्योरीज दे आर यूरोसेंट्रिक. उन्हीं की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियल वो हमारे मास्टर्स हैं. सो हमें लगता है कि उनकी हिस्ट्री है वही हमारी हिस्ट्री है, और हम उनका वजन ढो रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, वजन ढो रहे हैं. क्योंकि उस वक्त हमारी कंट्रीज में क्या हो रहा था, हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, हमारी खुद की कल्चर, हिस्ट्री, नॉलेज, नथिंग, हम कुछ पढ़ते नहीं है उसके बारे में. So yeah, but we have to study what we can do. If we have to crack the exam, this is not the time to discuss all these things. This is time to crack the exam. So let us focus on that, dear friends. So डिवाइन राइट्स जो थी वो डार्क एजेस मेडिवल टाइम्स के अंदर थी. जेम्स वन ने कहा था पीपल शुड वर्शिप इवन बैड किंग. वाई? बिकॉज दिस इज पनिशमेंट फॉर सिंस. दिस इज ए क्रेजी आइडिया. इवन द बैड किंग शुड बी वर्शिप्ड.
because this is your punishment for sins. But yeah, that was the idea. Nevertheless, it shows how divine rights were exploitative in Europe. And Islamic world, yeah, that is diversion. Let's leave it. So liberalism, it is one of the most important ideology. So let's start. Liberalism is like this belongs to modern Western philosophy. It is not just philosophy, but it is way of life. You know, लिबरलिज्म के बेसिस पे आप देखोगे जो आइडियाज़ ऑफ लिबरलिज्म, उनके बेसिस पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, all these are like revolutions have these ideas. So this is way of life, not just theory. This is longest surviving ideology since 17th century, and there are different schools of liberalism. First one classical, then modern liberalism, then neoliberalism and social liberalism. Neo and social, you can say they are contemporary. So their origin is in Renaissance, Reformation, scientific revolution, industrial revolution, and they gave rise to capitalist class. And this capitalist is also known as bourgeois. Okay, they wanted freedom from the feudal lords. So they say that हमें क्या दो, equality of rights. They demand rights. Okay, equality of opportunity, equality before law. ये सब क्या है? ये किसको चाहिए? ये कैपिटलिस्ट क्लास को चाहिए. किसके खिलाफ चाहिए? फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ चाहिए. ये बुर्जुआ को चाहिए फ्यूडल के खिलाफ. ठीक है. सो बेसिकली ये जो आइडियाज़ हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, किसकी लिबर्टी? बुर्जुआ की लिबर्टी. किससे? फ्यूडल लॉर्ड से. इक्वलिटी किसकी? बुर्जुआ की. किसके इक्वल? फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ. फ्रेटर्निटी, ये सब किसके लिए हैं? ये एक्चुअली बुर्जुआ कॉन्सेप्ट हैं. अब ये जाके दे बिकम कॉमन, अप्लाइंग टू द कॉमन मासेस. एक्चुअली दे वर ओरिजिन इनका कैपिटलिस्ट क्लास के भले के अंदर ही था. सो लिबर्टी, ये इसके आइडियाज़ क्या क्या हैं लिबरलिज्म के? लिबरलिज्म इक्वल टू लिबर्टी, and it can be argued that toleration is the substantive heart of liberty. What? Toleration is the substantive heart. Toleration is the substantive heart of liberty. Liberty, liberalism is not about liberty, but it is more about toleration. Toleration is the substantive heart of liberty. So liberalism is equal to liberty, but it is not more about liberty, but toleration is the substantive heart of liberty. I hope you understand. फिर भी समझ नहीं आए पूछ लेना, बता दूंगा. सो लिबरलिज्म, इट आई हैव जस्ट पुट द की वर्ड्स, नॉट द मच एक्सप्लेनेशन एंड ऑल. सो आई होप यू विल रीड बिटवीन द लाइन्स और द यू विल थ्योरी जो है दैट यू विल राइट ऑन योर ओन. सो लिबरलिज्म, इट रिप्रेजेंट्स लिमिटेड स्टेट. जॉन लॉक इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, एंड limited state basically means non-interference, and Locke, he favors night watchman state or police state. Limited state basically means what? Fundamental rights against the state, basically they are against the state also. Then they limited state is represented by secular state, secularism, because it will not interfere in the matter of religions. Democracy, judicial independence, they all are features of liberalism. Fundamental rights, secularism, democracy and judicial independence. Mill, it can be like beautifully presented in the words of James Mill. Over himself and his body, man is sovereign. Over himself and his body, man is sovereign. Over himself and his body, man is sovereign. That is the famous statement of John Stuart Mill. That's why it is said, if anyone is liberal, he is Mill. And he favors limited state, near anarchism, no state. Near matlab he gives lot of rights to the people and lot of freedom. He argues in favor of lot of freedom of the, and later on he also gives harm principle. What is harm principle? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ harm principle क्या है. पीछे के वीडियोज़ में मैंने बताया. अगर नहीं पता है then please do watch the previous videos to get a good understanding.
सो बेसिकली राइटिस्ट पीपल जनरली भी ये बस ऐसे ही ज्ञान है फ्री का, ठीक है, इसको ज़्यादा वो नहीं करना। राइटिस्ट और लिबरल हैं, बेसिकली दे हैव सेम इकोनॉमिक पॉलिसीज बट देयर सोशल गोल्स दे आर डिफरेंट। जनरली बोला जाता है भाई लिबरल हैं वो राइटिस्ट हैं कुछ चीज़ें, बट राइटिस्ट हैं वो तो कंजर्वेटिव होते हैं, बट राइटिस्ट हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट इकोनॉमी को, बट लिबरल भी तो मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या लिबरल राइटिस्ट हैं कि नहीं है, क्या चक्कर है क्या नहीं है? सो बेसिकली ये है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो सिमिलर है, बट जो सोशल गोल्स हैं वो डिफरेंट है। लिबरल्स चाहते हैं द चेंज्ड और मॉडर्न वैल्यूज़, और राइटिस्ट जो बेसिकली चाहते हैं वो कंजर्वेटिव और ट्रेडिशंस पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। सो या ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ कीवर्ड्स हैं, ये अलग से मैंने लिखा। अगर लिबरलिज्म के बारे में पूछा जाए, सो दीज फ्यू लाइन्स दे ब्यूटीफुली पुट्स अबाउट लिबरलिज्म। इंट्रोडक्शन में आप इनको रट सकते हैं, मतलब घोल के पी सकते हैं लिटरली। ये जो वर्ड्स हैं इनको मैं आपको बताऊंगा, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन कैसे बोलते हैं? क्लासिकल लिबरलिज्म। लिबरलिज्म बेसिकली मीन्स क्लासिकल लिबरलिज्म। यहाँ पे अपन क्लासिकल पढ़ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। क्लासिकल लिबरलिज्म इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ए ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म दैट एडवोकेट्स civil liberties under the rule of law with an emphasis on economic freedom। ठीक है, सारी चीजें आ रही है, कीवर्ड्स हैं। इट्स ए ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म दैट एडवोकेट्स civil liberties under the rule of law with emphasis on economic freedom, closely related to economic liberalism। It developed in early 19th century, building on ideas from previous century as a response to urbanization, industrial revolution in the Europe and North America। Urbanization, industrial revolution in Europe and America। Core beliefs of classical liberalism include new ideas which departed from the older conservative ideas। अपन ने डिफरेंस पढ़ा ना राइटिस्ट का, जो राइटिस्ट वर्सेस लिबरल्स का जो डिफरेंस था। तो लिबरल्स किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? दे डिपार्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव आइडियाज ऑफ सोसाइटी एज ए फैमिली विच वर द older ideas, and from the later sociological concept of society as a complex set of social networks। जो contemporary जो sociologist हैं, they put society as a complex set of social networks, और जो कंजर्वेटिव हैं वो दे पुट सोसाइटी एज ए फैमिली। ठीक है, दे पुट सोसाइटी एज ए फैमिली, और ये पुट करते हैं सोसाइटी एज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नेटवर्क्स। बट क्लासिक लिबरल बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स आर इगोइस्टिक, coldly calculating, essentially inert and atomistic, and the society is no more than sum of its individual members। इसको रट लो, मतलब यार इतना ब्यूटीफुली लिखा है ये, इसमें ऐसे ही आंसर लिखने, लोडेड विथ कीवर्ड्स, सो ब्यूटीफुली दे हैव पुट। अगर लिबरलिज्म के बारे में बोला जाए तो कितना अच्छे से इन्होंने बताया, बस इसी हिसाब से आंसर लिखने होते हैं। हर जगह देखो कितने कीवर्ड्स एकदम इन्होंने डाल रखे हैं, और इसी हिसाब से लिबरलिज्म को समझाना होता है। क्लासिकल लिबरलिज्म, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर इस तरीके से समझा दिया ना तो बस मजे हो गए। सो क्लासिकल लिबरलिज्म इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। फटाफट बोलेंगे कीवर्ड्स को, ठीक है, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, देखें बिना देखे कौन से कीवर्ड्स आपको याद है। क्लासिकल लिबरलिज्म इज बेसिकली इट इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ए ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म that advocates civil liberty for individual under rule of law, civil liberty that advocates civil liberty under rule of law and put emphasis on economic liberalism। It is closely related with economic liberalism। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए बोलते हैं और इकोनॉमिक लिबरलिज्म के साथ ये रिलेटेड है। It was developed in previous century as a response to urbanization and industrial revolution and in Europe and North America। Their core beliefs, उनका core belief क्या है? वो डिफरेंट है कंजर्वेटिव से, जो कि सोसाइटी को एज ए फैमिली मानते हैं, और वो डिफरेंट है मॉडर्न सोशियोलॉजी से, जो सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नेटवर्क मानते हैं। वो मानते हैं कि इंडिविजुअल इज कोल्डली कैलकुलेटिंग, इनर्ट एंड एटमिस्टिक, और
द सोसाइटी इज नथिंग मोर देन सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, इस हिसाब से आंसर लिखने हैं तो फिर बात बनेगी। तो ये न्यू लिबरलिज्म जो है, सॉरी क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उसके बारे में हमने पढ़ा। वेयर वर वी वर हियर, या सो जो क्लासिकल लिबरल्स हैं वो मानते हैं स्टेट इज नेसेसरी इविल, सोसाइटी इज रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोसाइटी इज रिजल्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई ये अपना धंधा अच्छे से कर सकें, बिजनेस अच्छे से कर सकें। बुर्जुआ लोग हैं ना, ये बुर्जुआ, इनको धंधा चलाना है अपना, तो क्योंकि अपना बिजनेस अच्छे से कर सकें तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ताकि इफ समबडी वायलेट्स द कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी punishment. Okay, so they take aggregative view of the society. The society is nothing more than sum of its individual, हमने अभी देखा था। और वो बोलते हैं कि कलेक्टिव जो इंटरेस्ट है ना, सोसाइटी एज ए फैमिली, सब परिवार कैसे हैं, दैट इज जस्ट ए फिक्शन। इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज द रियल इंटरेस्ट। वो बोलते हैं सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो फिक्शन है और कुछ भी नहीं है, बिना मतलब की बात बंद कर दो एकदम। इक्वलिटी जो है वो तीन तरीके की इक्वलिटी है, दैट इज देयर। मॉरल इक्वलिटी, एक तो मॉरल इक्वलिटी मतलब तीन तरीके की इक्वलिटी की बात होती है किसके अंदर, क्लासिकल लिबरलिज्म में। एक तो मॉरल इक्वलिटी की बात होती है। मॉरल इक्वलिटी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट से आती है कि भाई नेचर या जो भगवान है उन्होंने जो राइट दिया है, उन्होंने कुछ राइट दिए हुए हैं, ठीक है, नेचुरल राइट्स, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स इज टू चैलेंज द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स। ओके, so that is moral equality, that every man is equal, born equal. That is to challenge the theory of divine rights. So that is moral equality. You know, natural rights means nature is the source of rights. There are few rights which are by virtue of being human beings. Just because we took birth as human being, these rights belongs to us. So this is moral equality. Then equality before law. Equality before law. Why equality before law? क्यों? Just to challenge the theory of divine rights और theory of two swords. कि भाई कोई डिवाइन नहीं है, किंग हो चाहिए, कॉमन हो, सबको लॉ के सामने इक्वल होना चाहिए। देन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किस चीज़ के लिए? टू मेक मनी। फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनको कोई स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए, वो भी हमारे इक्वल हैं। सो ये इस तरीके की इक्वलिटीज़ की बात करते हैं क्लासिकल लिबरल्स। जस्टिस दे से प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, दैट रिवार्ड एज पर मेरिट, जितनी किसी की मेरिट है उतना उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, दैट टॉक अबाउट प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, दिस इज ऑल्सो अगेन बुर्जुआ कॉन्सेप्ट। देन इकोनॉमिक पॉलिसी, दे फेवर द लेयर्स फेयर policy. Adam Smith gave this, that he talks about invisible hand of the market, that market will manage automatically, you just let the market free market economies without any barriers. Okay, so that is Leas's fair concept of economy. Their social principle, they say that survival of the fittest, वो तो पहले ही पता लग रहा था उनकी बात से। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्यों है? क्योंकि वो पहले ही बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शनल इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे स्पेंसर ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वही होना चाहिए, ठीक है। एज दे से दैट, क्लासिकल लिबरल्स का फेमस वो है आर्ग्यूमेंट, ड्रंकर्ड इन द गटर इज वेयर ही ओट टू बी। ये दिया था इन जेंटलमैन ने, भाई साहब ने, समनर ने। सो ये इनका सोशल प्रिंसिपल हो गया। और ट्रेडिशनल जो हैं क्लासिकल्स हैं, दे फेवर्स नेचुरल राइट, जॉन लॉक। बट ये लोग ओवर शेडोड कर दिए गए धीरे धीरे बाय यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन। यूटिलिटेरियन मीन्स ओवर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म। हर चीज़ में ये लोग यूटिलिटी ढूंढ रहे हैं, यूटिलिटी यूटिलिटी यूटिलिटी। So liberalism became synonymous with utilitarianism in due course of time. But liberalism actually और भी ज़्यादा broad थी, उतनी नहीं थी, बट इसके अंदर यूटिलिटेरियन जो होते हैं वो इसके पार्ट थे। बट
यूटिलिटेरियंस जो लोग हैं उन्होंने ओवरशैडो कर दिया। ये जो पार्ट है यही समझे जाना, ये मान लो लिबरलिज्म पूरी है, इसमें से कुछ पार्ट हैं ये थे यूटिलिटेरियनिज्म। बट ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये सिनोनिमस बन गई लिबर्टी के, क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्कॉलर्स इसी चीज़ पे फोकस करने लग गए। सो लिबरलिज्म इज लाइक much broader than the capitalism, but utilitarianism is excessive profit oriented। इससे पता लगेगा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जितना मेरिट है उतना आप उसको दो, रिवॉर्ड करो। सो जो यूटिलिटेरियनिज्म जो है उनके जो फादर बोले जा सकते हैं एक हिसाब से जेरेमी बेंथम, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय थॉमस होब्स। बेंथम भाई साहब जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनका टाइम था, और होब्स जो थे वो यूके के सिविल वार से रिलेटेड थे। तो एक टाइम के जो स्कॉलर्स हैं वो एक जैसे आइडिया देंगे। वो ह्यूमन नेचर को क्या बताएंगे, सेल्फिश बताएंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बताएंगे, और उसी के बेसिस पे जो थ्योरी वो बनाएंगे तो डेफिनेटली आप सोच ही सकते हो कैसी थ्योरी होगी। तो ये जो क्लासिकल जो आपकी है लिबरलिज्म है, इसके जो एक्सपोनेंट्स जो स्कॉलर्स बोले जा सकते हैं, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर एंड रिकार्डो। ये तो बेसिकली रिकार्डो जैसे हो गए, एडम स्मिथ हो गए, ये सब तो इकोनॉमिक जो डॉक्ट्रिन है वो इन्होंने दिया था। स्पेंसर ने सोशल दिया था। जो इनके सोशल व्यूज़ हैं उनके ये हो गए, इकोनॉमी के ये दोनों भाई साहब हो गए, रिकार्डो एंड एडम स्मिथ, और ये इनके ओवरऑल स्कॉलर्स हो गए। ठीक है, इनका इक्वलिटी और वो सब के ऊपर ये भाई साहब बोलते हैं, लॉक, बेंथम, ये जो हैं, ये सारा इनका जो एक हिसाब से स्केलेटन है पूरा क्लासिकल लिबरलिज्म का, वो इन्हीं के आइडिया से आता है। लिबर्टी वगैरह ये सब बोलते हैं। बेंथम जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म का बाद में कॉन्सेप्ट देते हैं, इसी के ऊपर बिल्ड करके कि भाई इंडिविजुअल है, उसी के ऊपर उसी का जो भला है वही सब कुछ है, सोसाइटी वोसाइटी कुछ नहीं होती। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिकल लिबरलिज्म। बाकी के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से जल्दी जो आइडियोलॉजीज हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर, प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई शैल पर्सनली आंसर देम। और मॉडर्न लिबरलिज्म, उसके बाद में लिबरलिज्म के जो 2-3 हमने और ब्रांचेस देखी थी, वो भी, उसके बाद सारा सोशलिज्म, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कैसे वो इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे उनकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, वो सब चीज़ें भी हम डेफिनेटली देखेंगे। So we hope that you are enjoying the lectures. Thank you so much for connecting with us. Let's do it, guys. Let's work hard and let's make it happen. Thank you so much.